Now, Uttam, you That's have all. to ask the questions. Now you have to ask the questions to Lakshit. Yeah. What is your name? My name is Lakshit. What is your favorite actress? No, who is your favorite actress? Who is your favorite actress? My Why? because Is he not a doctor? वह मेरे दोस्त थे. Not वह, वे. वह मेरे दोस्त वे वे मेरे मेरे. दोस्त वे मेरे दोस्त थे. To these sentences, you can ask me. Otherwise, I'll teach you next exercise. So, do you have any doubt? No, sir. पूछो No. पूछो. No, sir. नो सर. तो बेटा सारे गलत है इधर का. Okay. नंबर पूछ ले. So now today I'll teach you exercise number 3. Let me share the screen. Here you, this is interrogative sentence. Okay, sir. Yes, now everybody write down exercise number 3. Today I'll teach you exercise number 3. This is use of will be and shall be. So write it down in your notebook. After that I'll explain. लिख ले. इसको शार्प भी नहीं किया. ले लिख. सिंपल. सिंपल. Written everyone? No, sir. नो सर. Do fast. सर डन. Very Sir, good. we have to write exercise number 3. Use of will be and shall be. Yes. Okay, sir. Done, sir. Yes, now listen to me all. Today we have to do exercise number 3. This is use of will be and shall be. इसकी पहचान देखो मैंने लिखी है. होगा, होंगे, होगी. जब किसी सेंटेंस के लास्ट में आता है होगा, होंगे या होगी, तो हम वहां पे विल बी या शैल बी का यूज करेंगे. आई और वी के साथ तो हम यूज करेंगे शैल बी, और अदर सब्जेक्ट के साथ हम यूज करेंगे विल बी. अब सेंटेंस बनाने के देखो स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे. लाइक दिस इज सिंपल सेंटेंस, दिस इज नेगेटिव, दिस इज इंट्रोगेटिव एंड दिस इज इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव. इफ आई से वह एक डॉक्टर होगा, ही विल बी अ डॉक्टर. वह एक डॉक्टर नहीं होगा, ही विल नॉट बी अ डॉक्टर. क्या वह एक डॉक्टर होगा, विल ही बी अ डॉक्टर. क्या वह एक डॉक्टर नहीं होगा, विल ही नॉट बी अ डॉक्टर. लाइक दिस वी हैव टू मेक द सेंटेंसेस. यस, देखो अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया कि हम आई और वी के साथ शैल भी लगाएंगे, अदर सब्जेक्ट के साथ विल भी लगाएंगे. बट इन स्पोकन इंग्लिश हम शैल का यूज ही नहीं करते, हम सबके साथ विल लगा देते हैं स्पोकन इंग्लिश में. दैट इज ऑल्सो करेक्ट. सो अगर हम स्पोकन इंग्लिश में आई के साथ विल लगाएंगे, करेक्ट. वी के साथ विल लगाएंगे, दैट इज ऑल्सो करेक्ट. बट इन रिटन इंग्लिश व्हाट वी हैव टू डू, with I and we have to use shall be, and with other subjects we have to use will be.
Now there are some sentences. Who will translate these sentences? Yes, who will translate? महक सर गौरव। Okay, Gaurav, translate now. वह एक डॉक्टर होगा। He will be a doctor. वह एक डॉक्टर नहीं होगा। He will not be a doctor. क्या वह डॉक्टर होगा? Will he not be a doctor? No, will he be a doctor? Will he be a doctor? वह डॉक्टर नहीं होगा। Will not, Doctor नहीं क्या है. वह डॉक्टर नहीं होगा? Will he not be a doctor? Very good. Yes, now listen to me all. Today I will teach you one more exercise. This is also very important exercise. And the exercise number 4 is use of has have. So write down everyone use of has have also. Excuse me, sir. Yes. Sir, can you open exercise number 3? I have to write something. Excuse me, sir. Yes. So, Miss Abhi, just now we do exercise number 3. So, इसके उसके नीचे मेरा पेज बचा हुआ तो मैं उसी के लिख लूँ, उसी के अंदर लिख लूँ exercise number 4. But you have to leave the space for sentences also. There are 8 sentences in that. Okay. So I have to write. So you have to leave some space for 8 sentences. Now write down everyone exercise number 4. कौन I'm going to explain the exercise number 4. So see everyone, exercise number 4 is use of has have. This is very important exercise. इसकी पहचान देखो मैंने लिखी है, जब प्रेजेंट में सब्जेक्ट के पास कुछ हो, जैसे मैं बोलता हूँ मेरे पास एक मोबाइल है, मेरे पास एक लैपटॉप है, उसके पास 3 मोबाइल हैं, मेरे पास 10 मोबाइल हैं, उसके पास 3 कार हैं, उसके पास पैसा है, उसके पास स्कूटी है, उसके पास फ्लैट है। तो इस टाइप के सेंटेंसेस में हम किसका यूज करेंगे? हैज हैव का यूज करेंगे। अब हैज किसके साथ लगेगा? देखो ये जो सब्जेक्ट है ही, शी, इट एंड सिंगुलर, इनके साथ तो हम लगाएंगे हैज। और इसके नीचे देखो मैंने लिखा है आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल, इनके साथ हम यूज करेंगे हैव। फिर से सुनो अभी, जैसे मैंने आपको क्या बताया अभी, आई सेड ही, शी, इट एंड सिंगुलर, इनके साथ तो लगेगा हैज। और आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल, इनके साथ लगेगा हैव। अब हम इन स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग कोई भी सेंटेंस बनाएंगे। जैसे मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार। रोहन के पास एक कार है, रोहन हैज अ कार। ये तो हमारा बना सिंपल सेंटेंस। नेगेटिव में हम क्या करेंगे? डूडस का यूज करेंगे, क्योंकि नॉट के साथ हमें डूडस भी लगाना पड़ेगा। तो अब आपको ये भी सीखना होगा दैट वेयर वी हैव टू यूज डू एंड वेयर वी हैव टू यूज डज। आपको सीखना है कि हम डू किसके साथ लगाएंगे और डज किसके साथ। तो देखो आई, वी, यू, दे एंड सिंगुलर, नो नो नो, अगेन ही, शी, इट एंड सिंगुलर, इनके साथ तो लगेगा डज। आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल, इनके साथ लगेगा डू। अगेन आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल, इनके साथ हम यूज करेंगे डू। ही, शी, इट एंड सिंगुलर, इनके साथ हम यूज करेंगे डज। अब हम देखो सेंटेंस बनाते हैं। मेरे पास एक कार है, तो ऐसे बनाएंगे आई हैव, आई हैव अ कार। मेरे पास कार नहीं है, आई डू नॉट हैव अ कार। क्या आपके पास कार है? डू यू हैव अ कार?
क्या आपके पास कार नहीं है? Do you not have a car? Like this, we can translate any sentence. So now there are some sentences. First sentence I have written here, रोहन के पास एक कार है. रोहन has a car. रोहन के पास कार नहीं है. रोहन does not have a car. और we can say रोहन doesn't have a car. क्या रोहन के पास कार है? Does रोहन have a car? क्या रोहन के पास कार नहीं है? Does रोहन not have a car? Yes, any doubt anyone? No, sir. क्या आपके पास कार है? Do you have a car? हाँ मेरे पास कार है. Yes, I have a car. क्या आपके पास बाइक है? Do you have a bike? नहीं मेरे पास बाइक नहीं है. No, I don't have a bike. Now tell me, who will translate these sentences? कर देगा ट्रांसलेट. Sir Gaurav. Okay, Gaurav, translate. रोहन के पास एक कार है. रोहन है वह कार. रोहन के पास एक कार नहीं है. No. Yes, with Rohan we cannot use have. With Rohan we have to use has. Speak again. रोहन के पास एक कार है. रोहन हैज अ कार. रोहन के पास कार नहीं है. रोहन हैज नॉट अ कार. No. See, like this we have to make. Rohan does not रोहन डज have. नॉट हैव अ कार. Yes. क्या रोहन के पास एक कार है? डज रोहन हैव अ कार? क्या रोहन के पास एक कार नहीं है? डज रोहन डू नॉट हैव अ कार? No. क्या आप Does Rohan not have a car? डज रोहन नॉट हैव अ कार? बाइक. नहीं मेरे पास बाइक नहीं. आई डोंट हैव अ बाइक. Very good. Who will translate now? Sir, hi. What's your name? Sir Yashvi. Okay, Yashvi, translate. रोहन के पास एक कार है. रोहन हैज अ कार. रोहन के पास एक कार नहीं है. रोहन डज नॉट हैज अ कार. No, क्या does not have. रोहन डज नॉट हैव अ कार. क्या रोहन के पास एक कार है? डज रोहन हैज अ कार. No. Does Rohan have a car? डज रोहन हैव अ कार. क्या See, रोहन के just a पास minute. एक Yes, just a minute, everyone. See, I told you that हैज हम सिंपल में यूज करेंगे, बाकी तीनों में हैज का यूज ही नहीं करेंगे. बिकॉज जब हम डूडस का यूज करते हैं तो डूडस के साथ कभी भी सेंटेंस में हम हैज का यूज नहीं कर सकते. सो अगर हम डूडस का यूज करेंगे तो वहां पे हमें हैव लगाना पड़ेगा. नेक्स्ट. क्या रोहन के पास एक कार नहीं है? डज रोहन डज नॉट हैव अ कार. नो, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. आपने कहा डज रोहन डजंट हैव अ कार. दिस इज रॉन्ग. डज रोहन नॉट हैव अ कार. डज रोहन नॉट हैव अ कार. क्या आपके पास एक कार है? डू यू हैव अ कार. हाँ मेरे पास कार है. यस आई हैव अ कार. क्या आपके पास बाइक है? डू यू हैव अ बाइक. वेरी गुड. Yes, now everybody tell me. Today I have taught you 2 exercise. Today I have taught you exercise number 3 as well as 4. So do you have any doubt related to any exercise? No. No?
So can you translate all the sentences? Okay, if I ask you, अगर मैं आपसे पूछता हूँ क्या आपके पास कार है, तो मैं इंग्लिश में कैसे पूछूंगा? डू यू हैव अ कार? सपोज केशव आपके पास कार है, तो आप क्या बोलोगे? Yes, I have a car. यस। तो नाउ लक्षित, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आपको यस में आंसर देना है। डू यू हैव अ कार? Yes. बोलो यस आई हैव अ कार। Yes, I have. नो, लक्षित विल आंसर। लक्षित, यू आंसर। डू यू हैव अ मोबाइल? Yes, I have a mobile. डू यू हैव अ लैपटॉप? Yes, I have a laptop. डू यू हैव अ स्कूटी? देना है। डू यू हैव अ कार? No, I have no car. नो, आई डोंट हैव अ कार। डू यू हैव अ कार? No, I don't have a car. डू यू हैव अ स्कूटी? No, I don't have a scooty. डू यू हैव अ ब्रेन? No, स्पीक। डू यू हैव अ ब्रेन? yes. नो यू। No, I don't have a brain. Okay, so now listen to me all. Today I have taught you two exercise number 3 and 4. So I will send you some sentences. You have to translate into English. And after that, in next class, I will check. And today I did not ask you word meanings. In next class, I'll ask you word meanings as well. Okay? Yes, sir. Okay. Okay, then good night, everyone. See you in next class. Good night, sir. Bye Good bye, night, sir. sir. Good night. Bye, sir. Good Good night, night, sir. Good night, Good sir. night. Bye bye, sir. Bye, everyone. Charlie. Good night. Good night, sir. Bye bye. Good night. Good night, sir. Good night. Good night, sir. Good night. Yeah.